Hello friends, I am Chintan Joshi from Nalanda Vidyalay, Virpur Morbi, and in this subject Business Studies we are discussing about chapter number 7, that is directing, in our class 12th Commerce. Students, till now we have discussed about introduction, concept, characteristics and importance of directing. Now, from today onwards, we are going to discuss about the several elements of directing, right? So, let me discuss about the elements of directing. There are basically four elements of directing, starting with number one, supervision, number two, motivation, number three, leadership, and number four, communication. Let me give some highlights about these four elements that we are going to cover under this chapter, right? Point number two, that is concept of supervision and functions of a supervisor. That is the first element. Point number three, motivation, concept and feature. Number four, Maslow's needs hierarchy theory of motivation. Number five, financial and non-financial incentive. So point number 3, 4 and 5, that is the second element of directing, that is motivation. Point number 6, over here, leadership is the third important element of directing, where we are going to discuss about the concept, characteristics and styles of leadership. Into the styles, we are going to discuss about three different styles of leadership. Point number 7, that is communication, and point number 8, that is formal and informal communication. These 2 points, 7 and 8, are the first element of directing, right? So now onwards we are going to start about the elements of directing, right? Let me discuss the first element, that is the supervision. Over here, first of all, concept of supervision. What is supervision? Supervision consists of two words, super and vision. What is mean by super? Super means over and above, whereas vision means art of seeing. The word supervision can be understood in two ways, that is as an element of directing, दूसरा है as a function performed by the supervisor. So supervision means above or over seeing, right? Art of seeing. So first of all, let me discuss about as an element of directing. As an element of directing, supervision क्या है? As an element of directing, supervision can be defined as supervising the work of subordinates by the managers. Managers जो है वो subordinate का काम देखते हैं, उनको supervision कहा जाएगा directing के element की तरह. अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन अदर वर्ड्स we can say supervision means overseeing what subordinates are doing, वो लोग क्या कर रहे हैं, and giving them instruction, उनको instructions देना, उनके काम को देखना, उनको instruction देना. किस लिए ये दो चीज परफॉर्म की जाती है? टू एंश्योर फुलर एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उनको अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और फुलर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके लिए उनको इंस्ट्रक्शंस देना और उनको सुपरवाइज करना, उनको ओवरसी करना, राइट, is called as a supervision. So as concluding this point, what is supervision as an element of directing? As an element of directing, supervision is like overseeing of subordinates for what they are doing, as well as giving them instruction for the achievement of organizational goals in a optimum way by using the resources, right? So this is all about the first one. Second one is as a function performed by the supervisor. Supervisor जो function perform करता है उसकी तरह supervision क्या है? Further, supervision is considered as a function performed by the supervisor at the supervisory or operative level in an organization. हम लोगों को पता है कि भाई सुपरविजन जो है वो ज्यादातर ऑपरेटिव लेवल पे या तो सुपरवाइजरी लेवल पे एज अ फंक्शन सुपरवाइजर से परफॉर्म किया जाता है.
ही हैज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्कर्स, सुपरवाइजर का वर्कर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है यहाँ पे। Thus, his function as and performance are very important for any organization। और इसी के कारण ये सुपरविजन का जो फंक्शन है, जो सुपरवाइजर परफॉर्म करता है, उसका ये परफॉर्मेंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ पर कुछ गलती हुई, इट मीन्स कि ऑपरेटिव लेवल पे या सुपरवाइजरी लेवल पे परफॉर्मेंस में कुछ गलती हुई तो क्या होगा, हायरार्की की पूरी चैनल तक गलतियां मिलेगी। आगे देखते हैं, सुपरवाइजर इज एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मैनेजरियल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एट द सुपरवाइजरी और ऑपरेटिव लेवल। देखो सुपरवाइजरी और ऑपरेटिव लेवल पे सुपरवाइजर की जो पोजीशन है वो एज अ मैनेजर है, राइट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को आप अगर कंसीडर करो तो सुपरवाइजर की एज एन इंडिविजुअल जो पोजीशन है वो एज अ मैनेजर रहती है। कंटिन्यू में देखते हैं, his main function is to guide the efforts of employees towards accomplishment of organizational goals। देखो सुपरवाइजर का मेन फंक्शन क्या रहता है, जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है ना एम्प्लॉइज को, उनको गाइड करना, उनको सही डायरेक्शन में गाइड करना। और किसके लिए उनको गाइड करना है, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उनको अचीव करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए इंडिविजुअल एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को गाइड करना, ये सुपरवाइजर का मेन फंक्शन है। सुपीरियर में ऑल्सो बी designated as foreman, superintendent, सेक्शन ऑफिसर एंड सेक्शन इंचार्ज। जो सुपरवाइजर है उनको और भी कुछ नाम से डेजिग्नेट किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, राइट। उसकी डेजिग्नेशन जो है वो एज अ फॉरमैन, सुपरिंटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर या सेक्शन इंचार्ज हो सकती है। Thus, supervision is the function of assuring that the work is being done as per plan instructions, right? डेविस ने ये चीज बताई है कि इस तरह से सुपरविजन को अगर कंसिडर किया जाए तो सुपरविजन फंक्शन क्या है, राइट। तो ये एक ऐसा फंक्शन है कि वो अश्योर करेगा काम को कि वो जो प्लान किया है, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसके मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो इट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन। अच्छी तरह से समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। देयर आर टोटल 7 फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। नंबर 1, एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर। Number 2, act as a link between worker and management. Number 3, maintains group unity among workers. Number 4, ensure performance of work. Number 5, provides training to the workers. Number 6, builds high morale among workers. And at last, डेवलप्स वर्क स्किल। चलिए देखते हैं इन 7 फंक्शंस को डिटेल में। फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर, सबसे पहले फंक्शन में आता है एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर। सुपरवाइजर मेंटेन्स अ डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द वर्कर। देखो ये चीज हमें पता है, हमने आगे भी देखी कि भाई सुपरवाइजर जो है वो वर्कर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। इट मींस ही इज वर्किंग एट ऑपरेटिव लेवल या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की, और जो वर्कर रहते हैं वो उनके डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। ही एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द वर्कर्स। देखो सुपरवाइजर जो है वो अपने वर्कर के साथ एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसोफर, एज अ गाइड बिहेव करेगा। तो सबसे पहला फंक्शन है कि वो अपने वर्कर के साथ एज अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर बिहेव करे। दूसरा फंक्शन, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। देखो ये हमें पता है कि वो वर्कर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट इट इज फ्रॉम द बॉटम वे, राइट। इन द हायरार्की इफ वी डिस्कस अबाउट द अपर पार्ट, ही इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मैनेजमेंट टू, राइट। तो इसी तरह से देखो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में अगर कोई लिंक है तो वो है सुपरवाइजर।
सेकंड पॉइंट में वही चीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अ सुपरवाइजर इज एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन सुपरविजन। सुपरवाइजर वो है जो सुपरविजन में खुद से कहीं ना कहीं एंगेज्ड है। ही सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट, वो सबॉर्डिनेट के काम को सुपरवाइज करेगा। ही इज द लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वो वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच की एक लिंक है, एक कड़ी है। He ensured that plans and procedures are implemented as per schedule। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पर एंश्योर करेगा कि जो कुछ भी प्लान्स एंड प्रोसीजर्स शेड्यूल किए गए हैं उसके मुताबिक इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंटिन्यू में देखते हैं। He conveys all the instructions, plans and ideas of the management to the workers। देखो वो बीच में जुड़ती हुई कड़ी है, तो वो क्या करेगा कि जो मैनेजमेंट की ओर से इंस्ट्रक्शंस, प्लान्स या आइडियाज मिलते हैं वो वर्कर को कन्वे करेगा, राइट। और उसके अलावा क्या करेगा, एंड वर्कर्स सजेशंस, कंप्लेंट्स एक्सेट्रा टू द मैनेजमेंट। तो वर्कर से जो कंप्लेंट्स आती है, सजेशंस आते हैं, फीडबैक आते हैं, वो मैनेजमेंट की ओर अपर साइड कन्वे करेगा। Thus, his presence in an organization helps in avoiding conflicts and misunderstanding between the workers and the management। तो देखो उसकी जो प्रेजेंस है वो क्या करेगी कि जो मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हैं या तो वर्कर्स जो कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं उनके बीच में ये लिंक की तरह बिहेव करेगा। और इन दोनों के बीच में यानी मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको वो अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, अवॉइड करेंगे, राइट। सो दिस वे इट इज लाइक अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। Point number 3, maintain group unity among workers। He plays an important role in integrating the activities of different workers under him by solving their problems among themselves only as far as possible। देखो सुपरवाइजर जो है वो सिर्फ एक या दो या पांच या सात वर्कर के लिए अपॉइंटेड नहीं रहता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सुपरवाइजर के अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉइज जो है वो काम करते हैं। अभी उस सारे एम्प्लॉइज को जो कुछ भी डिफिकल्टीज है, उनके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, उनके सॉल्यूशन के लिए वो यहाँ पर एज अ सुपरवाइजर काम करता है। तो सभी के प्रॉब्लम्स को, एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करने के बाद उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का काम करता है, राइट। जब वो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन परफॉर्म करता है तब वो सारे वर्कर में, राइट, एक यूनिटी, एक ग्रुप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, राइट। सो दिस वे सुपरवाइजर परफॉर्म्स अ फंक्शन एज अ मेंटेन ग्रुप यूनिटी अमॉन्ग वर्कर्स। फोर्थ वन इज एंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। देखो ये तो उसका बेसिक रोल है, उसका बेसिक फंक्शन है कि वो ये एंश्योर करेगा कि काम एक्चुअल में परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। He has the responsibility for completion of a job according to the target set। He motivates his workers to perform effectively। देखो उसका वही तो काम है कि वो क्या करेगा कि वो एंश्योर करेगा कि काम कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, जो टारगेट सेट किए थे उसके मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो अपने एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को मोटिवेट करेगा जिसके कारण वो अपना काम इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके, राइट। परफॉर्मेंस को देखना ही तो उसका बेसिकली मेन रोल है। फिफ्थ वन इज प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। A skilled and experienced supervisor makes arrangement for providing on-the-job training to his workers and also builds up an efficient team of workers। देखो जो सुपरवाइजर स्किल्ड और एक्सपीरियंस रहेगा वो अपने वर्कर्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का अरेंजमेंट भी करेगा और उसी के साथ साथ उनके ये एफर्ट्स रहेंगे कि उनकी जो वर्कर की टीम है वो एफिशिएंटली काम परफॉर्म करे, राइट, वर्क को परफॉर्म करे।
तो बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करना अपने वर्कर्स को, राइट, उसको मोटिवेट करना, एफिशिएंटली काम करवाना, ये उसका एक वन ऑफ द फंक्शन है, राइट। आगे 6 इज बिल्ड्स हाई मोरल अमंग वर्कर्स। Supervision with good leadership qualities plays an important role in influencing the workers and boosting their morale. देखो, जब सुपरवाइजर अपने वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहा है, उसके साथ साथ वो उनको गाइड करेगा, उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करेगा, राइट। सही फॉर एग्जांपल, अगर वर्कर की कहीं पर गलती हो रही है उसके परफॉर्मेंस में, तो वो उसको करेक्ट करने में भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जब ये चीज वर्कर के साथ होती है तो वर्कर्स को जो है वो हाई मोरालिटी मिलती है, राइट, कि कोई तो है जो हमें संभाल रहा है, राइट, somebody is there to guide us, right, somebody is there to give us a proper guidance, instructions, right, motivations, etc. So this way he is performing a function, right, for the building up high moral among the workers. Last one is develops work skill. A good supervisor always analyzes the work of his subordinates and gives them suggestions for further improvement in their work skill and performance. देखो, जो अच्छा सुपरवाइजर रहेगा, राइट, जो क्वालिटी सुपरवाइजर है, स्किल्ड सुपरवाइजर है, राइट, वो बेसिकली क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट की स्किल्स को एनालाइज करेगा, राइट, और उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए वो उनको सजेशंस प्रोवाइड करता रहेगा, जिसके कारण वर्कर्स की स्किल्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, राइट। उनको अच्छी तरह से उसकी जो मिस्टेक्स है उसको गाइड करना, उसको इस तरह से उस स्किल्स को इम्प्रूव करना, ट्रेन करना कि वो इससे भी अच्छा बेहतरीन काम कर सके, ज्यादा इफेक्टिवली एंड ज्यादा एफिशिएंटली, राइट। सो दिस वे ही इज developing the skills among the workers, right? So one of the function of supervisor is like developing the skills of their workers too, right? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट द सुपरवाइजर different functions as well as concept of supervision into the two aspect as an element of directing as well as a function of supervisor, right? छोटे से वीडियो में और इतने इजीएस्ट वीडियो में आप लोगों को शायद कोई डाउट्स नहीं ही होने चाहिए। फिर भी अगर कुछ डाउट्स है तो हम लोग सॉल्व करेंगे हमारी मैक मीटिंग में जब हम लोग मिलेंगे, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।